You know, another zero se restart or start was this kid who was doing this song, Hrithik Roshan. This was his first film. That was the first time Hrithik was cast outside of his father's film, the first one. So the way you remember, he couldn't do one step. And he wanted a mirror. So I got him a mirror. I broke a mirror from a makeup room. Because he didn't think, he kept telling कि मुझे mirror होता ना तो मैं बहुत अच्छा कर लेता. तो mirror नहीं था. So I broke a mirror, brought it, and that's how he got this step right. Absolutely. I remember that day when we were sitting on your, that room upstairs, and he said, let me introduce you to the new hero of my film, a new kid. Just check him out. His name is Hrithik Roshan, and then Hrithik Roshan walked in. That was the first day. Anyway, enjoy your rest of the morning. Thank you, Vinod. Thank you. Where does she live? I was in Warsaw. I said, send her now. She came and she went on mic and she sang the first line and I fell in love with her. It was unbelievable, which now you know. हर बार ये गाती है, we all fall in love with her. Oh my God. Like how he said, but श्रेया, अभी हमको थोड़ा हिंदी में बात करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, वहाँ से रिक्वेस्ट आया. हाँ. आप बंगाली है ना, इसलिए टेस्ट है ये. मैं तो यही कहूँगी कि मेरे लिए तो सारा ये ख्वाब सा था, ड्रीम ऐसा ही लग रहा था, सुरियल, बिकॉज व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट एंड द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ वो किसी पर्सन का पहला इम्प्रेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना. सो आई फेल्ट there was so much passion, energy, and a childlike energy which you see right now also. That was so amazing to see from a person who has got a body of work of what order. And मैं बहुत young थी, naive थी, लेकिन इतना प्रोत्साहन डे वन में, वो पहली लाइन से मैं कांच के पीछे देख रही हूँ कि सर ऐसे उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, ही सो हैप्पी. और वो मतलब किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और आशीर्वाद होता है. सो आई थिंक ही हैज़ बीन दैट फॉर नॉट जस्ट मी, फॉर मेनी मेनी आर्टिस्ट, सिंगर्स, कंपोजर्स, एक्टर्स, एंड वी लव यू सर. वी लव यू सो मच. You know, the kind of contribution that जो मैंने इतने सालों में बहुत कुछ सीखा है, how to sing really on mic from the greats like you, Shantanu da. I learned for the first time what is expression. मतलब मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो इतना आइडिया नहीं था. मुझे पता था कि सुर में गाना चाहिए, लय ताल होना चाहिए. What is expression is what this man taught me. पीयू बोले का जो वो पीयू बोले, वो हंसी भी उन्होंने सिखाई हुई है. प्रदीप दा was there, and this was so cinematic, and that made so much of difference for the actress Vidya Balan ji to enact. And later I understood कि कितना value है इन सब चीज़ों का. But talking about words, there was one more song which I want to sing two lines. बिल्कुल. It's not in capacity of the director, but he was in the capacity of a lyricist. Yes. तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं. तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं. तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन. और भी है बहुत, क्या करूं. I wrote the बोलो lyrics ना, of this. No, that इसका is not- please. इसका ही तो है. बोलो ना, हाँ बोलो ना. बोलो भी, बोलो ना. मतलब I have insane number of songs with this man, so I don't know where to start and where to stop. मैं निकलती हूँ अब. Thank you so मेरी much. रीस्टार्ट वापस हो ही नहीं रही. एक तो मैंने बता दे रहा हूँ, शंकर, शान, श्रेया, विनोद चोपड़ा का जब लैंडमार्क आएगा, मैं एज की बात नहीं कर रहा हूँ, we have to do a concert celebrating his film songs. We have to do it. Thank you. We have to do this. I know that landmark Yes. is coming soon, so correct. And I must tell her that her singing, because that was also a zero moment for Vidya Balan. She had never acted before. Correct. That song, the way she sung, helped Vidya act. Absolutely. That's the important thing. She had. You held all of us together in that moment, so thank you so much. Thank you, Shreya. Thank you so much.
And now, another young kid who was so small. बहुत रेयर है कि ऐसे हम लोग सब बैठ के अड्डा मार के गाना कर रहे हैं, एक ही गिटार कुछ नहीं है. I'm just loving this vibe, है ना? See, the important thing is that this is probably the first music launch when there are not many people playing and everything. I wanted it to be like how we are, how we make music. And to go back to Shaan, इतना सा था ये. I still remember. इतना सही था ना कि इतना था. जब हम मिले थे तो इतना ही था. 12. और ये ऐसा माइक नीचे करके R.D. Burman of course was there, and I still remember the first one. And it's really very emotional for me that this song is now going to be sung by them. But before I go to release the song, I want to introduce a very interesting Zero guy, the kid who actually with me directed and edited this film. Kid called Jas Kavarkoli. He should be somewhere. Oh, aata nahi hai. This is the kid who's just come straight from editing room. He has edited, directed and narrated the film. And there's very interesting anecdote he just told me कि कितनी footage से कितनी film बनी है, ये मैं चाहता हूँ ये आप लोगों को बताएं. So this was not a 03 Start was not a planned film. उसका कोई बनाने का हमारा intention था नहीं. इसका पहले मैं पूरा introduction कर दूँ. ये जीरो इसका D to D है. ये ड्रोन ऑपरेटर था साला. इसको कुछ नहीं आता था. ड्रोन चलाता था शिकारा में. आता तो था मगर था ड्रोन ऑपरेटर. फिर इसने ड्रोन ऑपरेटर बन के वो थोड़ा एडिट किया. क्या था वो शिकारा डायरीज. तो बहुत अच्छा एडिट किया. तो इस पिक्चर में मेरे साथ था लिखने एडिट के लिए. तो पहले असिस्टेंट एडिटर था, मैं एडिट कर रहा था. तो अच्छा काम करने लगा शंकर. तो मैं बोला यार असिस्टेंट नहीं तेरे को एसोसिएट एडिटर बना दूंगा. खुश हो गया तो एसोसिएट एडिटर हो गया. फिर चलता गया, अच्छा काम कर रहा था. तो मैंने कहा यार तेरे को को एडिटर बनाऊंगा मैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहा था. हो गया एडिटर, को एडिटर बन गया. फिर चलते चलते एक स्टेज आई, आई कुडंट रेजिस्ट. मैंने कहा यार मैंने ज़िंदगी में नहीं किया है, मैं एडिटिंग क्रेडिट तेरे से शेयर करूंगा. एडिटेड बाय विधु विनोद चोपड़ा एंड जस कवरकोली. तो भाई साहब खुश हो गए. और जब तक पिक्चर ख़त्म हुई क्रेडिट ये है कि एडिटेड बाय जस कवरकोली विनोद चोपड़ा. मतलब मैं कंसल्टेंट एडिटर हो गया हूँ. और कंसल्टेंट ये पहली बार मेरी फिल्म में टाइटल होगा एडिटेड एंड डायरेक्टेड बाय जज कवरकोली, कंसल्टिंग एडिटर एंड डायरेक्टर विद विनोद चोपड़ा. क्या बात है. तो इस बच्चे ने मेरे को कंसल्टिंग बनाया. नाउ यू स्पीक. Sir, I also have a zero moment with you. COVID का टाइम था and we were all lost. I was also lost and थोड़ा डिप्रेशन वाले स्टेट में था. और मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर मतलब मैं घर जा सकता हूँ क्या 4-5 महीने के लिए. आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम. आई वॉन्ट टू बी विद फैमिली. आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड. एंड ही सेड या प्लीज गो टुमारो. ऐसे नहीं सर कल नहीं, मतलब आई विल गो यू नो नेक्स्ट मंथ, आई विल रैप अप सम वर्क. बोलते नहीं कल जा. ऐसे नहीं सर कल नहीं सर, मतलब आई विल गो सून. तो बोलते ठीक है अच्छा तो फिर कल नहीं जा रहा तो एक काम कर ये पढ़. एंड देयर वाज अ स्क्रिप्ट दैट सर शेयर्ड विद मी. उस टाइम पे एक रेडी बाउंड स्क्रिप्ट थी कॉल्ड 12th फेल. एंड आई रेड दैट एंड ही आस्क्ड मी कि क्या लगता है. मैंने बोला सर इट्स नाइस. हमको कभी कभी सर एयरपोर्ट में मिलते हैं, स्टेज में मिलते हैं. वेरी रेयरली वी मीट. इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग टुडे. आई थिंक ये इंस्पिरेशन इस धुन का इसी से कि यार काश ऐसा दिन वापस होता कि हम जब बैठ के अड्डा मारते थे वैसा हो जाए. यार सच्ची यार, मतलब आज का जो एनर्जी था ना, बहुत दिल खुश हो गया. मज़ा आ गया. और बहुत साल बाद आई थिंक फर्स्ट टाइम एवर इस तरह से हम लोग एक्चुअली लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे सब साथ में माइक के पीछे. जो पहले शुरू लोग सुनते हैं सिर्फ कि ऐसा हुआ करता था एक वक्त में. सो इट वाज नाइस दैट वो भी एक 03 स्टार्ट हुआ. सब मिलकर गा रहे थे. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें. 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर. आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद.